the reason behind that. So you have to anything is shared in your group to just for reading point of view, study point of view. So you just go through that contents before allocation in the classroom, because if you have any doubts, because that topic will be discussed, but you just point out the particular word or any terminology. At the moment when the particular session is going on, you can raise that doubts. That's why the contents are shared in your group. Earlier, whenever we are conducting only offline class, then there's no such types of equipment you have. To you just have to go to go through the particular contents with book, and whatever book or reference given to you by the college or reference book available to the market. So up to which we completed, कहाँ तक हम लोग complete किए थे? यानी कि we just discussed the CPU and its component, and ALU is already discussed. ALU हो गया था ना? तो कोई बताएंगे what is the basic role of CPU before a discussion of the components and the rest of the components? What do you understand right now? What is your recognition, and again what types of acknowledgement you have regarding the topic CPU? So CPU basically basic responsibility क्या है CPU का? Entire it will CPU control and coordinates entire operation of the computer system. Entire operation का मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी operation procedures that is under control of CPU, and it is the central part of the computer. ये आपके कंप्यूटर का central part है. That's why sometimes CPU is also known as brain of computer. But actual brain is the control unit. When we discuss the control unit, then every responsibility which is termed as a CPU, any responsibility which is related to the CPU is also related to the CU, because CU is the main component which accomplishes these types of activities. So we already discussed about the control unit, because जो CPU का काम है इंस्ट्रक्शन साइकिल के तीनों फेजेस को पूरा करना. तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का 3 फेज क्या है आपको पता है? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट. कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन का एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस के सर्चिंग से इनिशिएट करके डिसीजन मेकिंग एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ जॉब. ये तीनों जो फेजेज है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू. बिकॉज अब बोलेंगे कि प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट द फेच इंस्ट्रक्शन, देन हाउ इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू? बिकॉज तो बता सकते हैं व्हाई इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू? Yes, ना decode तो है. Fetch phase is accomplished by the primary memory, but still we are saying that it is under control of CPU. तो बता सकते हैं क्यों? Fetching phase हम लोग बताया कि primary memory का काम है, control unit का काम है decoding, और rest of the component जो CPU का है, registers, ALU, FPU, that is the component which is responsible for execution part. But we are saying that CPU is coordinating and controlling entire activities of the computer, and instruction cycle के हर phases को भी यही control कर रहा है. तो fetch phase को भी ये control करता है. ये कोई justify कर सकते हैं? Anyone online और offline mode में? In online mode कोई बता सकते हैं तो raise the hand. Simple है. और नहीं है कोई तो आप बताइए. Offline mode में आप लोग बताइए किसी कोई. Why we are saying that कि fetch phase is also under control of CPU? कैश मेमोरी रहता है वो तो ठीक है. कैश मेमोरी हायरार्की हम लोग डिस्कस कर देंगे, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. कैश मेमोरी रहता है, प्राइमरी मेमोरी रहता है, लेकिन कैश मेमोरी सीपीयू के साथ रहता है इसलिए. सिंपल है, सिंपल. कोई बताइए, थोड़ा सा स्टेज दीजिए. हमने मेरा क्वेश्चन है, हाँ चलो मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल में 3 फेजेज होता है, ठीक है ना? इन योर इंस्ट्रक्शन साइकिल
Instruction cycle consists of 3 phases: fetch phase, decode phase and execute phase. ठीक है ना? 3 phases are there. और आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये जो आपका phases है, इसमें decode is the responsibility of CU, fetch is the responsibility of primary memory, ठीक है, and execution is the responsibility of ALU, FPU and the register set, whatever registers we have for the particular microprocessor. But decoding is the middle stage जो middle phase बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल का। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ये 3 फेजेज है: फेच फेज, डिकोड फेज और एग्जीक्यूट फेज। तो सीयू डिकोड और एग्जीक्यूट तो अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू होगा या सीयू के होगा, क्योंकि ये डिसीजन लेगा तभी एग्जीक्यूशन आपका इनिशिएट होगा। लेकिन इस फेज के लिए भी कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। मेरा यही क्वेश्चन है, ये तो बता सकते हैं ना क्यों इसको बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग फेज? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट्स व्हाई नो इट कंट्रोल ओवरऑल द एक्टिविटी ऑफ द ओवरऑल, तो दैट इज नॉट द आंसर। मेन रीजन बताइए, रीजन, क्योंकि सीपीयू जब आप पढ़े तो उसमें कंट्रोल, कोऑर्डिनेट्स, इंटायर ऑपरेशन का बताया, पेरिफेरल डिवाइसेस को भी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करता है, जो भी इनपुट आउटपुट या कोई भी डिवाइसेस है। तो फेच फेज आपका प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट करता है, लेकिन ये भी अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू, आप बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट के, बिकॉज द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट इज कंट्रोल यूनिट, तो इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग दैट फेचिंग फेज। तो कोई इसको आपको जस्टिफाई करना है कि कंट्रोल यूनिट भी इसको सपोर्ट देता है, बिना कंट्रोल यूनिट के। सर मेनली सारा कंपोनेंट तो सीयू से कनेक्टेड है। हाँ, सारा कंपोनेंट सीयू से कनेक्टेड है, सीपीयू से, तो वही पोर्ट के थ्रू, रैम स्लॉट के थ्रू कनेक्टेड है। तो सिंपली आपको ये बताना चाहिए कि आपका जो फेच इनिशिएट होता है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है? बिकॉज कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। So once the control signals are generated, then after fetching is initiated. Fetching is initiated once the control unit generate the control signals to perform fetching of instruction. Until and unless, जब तक कि आपका कोई भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं करता है सीपीयू, क्यों? क्योंकि प्रिंटर को प्रिंट करना है, ये इसका कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करेगा? प्रिंटर आपका क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो उस पेरिफेरल का डिवाइस एड्रेस पोर्ट को कौन भेजेगा? योर सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। तो वंस द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर प्रिंटिंग इज इनिशिएटेड, देन आफ्टर द डिवाइस इज सर्च। डिवाइस सर्चिंग कब होगा? हमको कौन सा 3 प्रिंटर है, जिस प्रिंटर का डिवाइस एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा उसी प्रिंटर को जॉब असाइन किया जा रहा है। तो वो प्रिंटर आपका जो दिखेगा या सर्च होगा या उसका पोर्ट उसका स्टेटस बताएगा कि रेडी है या नहीं है। कब बताएगा? जब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। तो प्राइमरी मेमोरी भी फेचिंग इंस्ट्रक्शन, अब जैसे आपको कोई क्वेरी दिया गया जवाब देने के लिए, तो ये सिग्नल आपको कहीं ना कहीं से ब्रेन से आपके प्राइमरी मेमोरी को मिलेगा, चलो इसका जवाब दो, ये क्वेश्चन आया इसका जवाब दो। तब तो आपका प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट करेगा। जब तक कि आपके ब्रेन यानी कंट्रोल जो सेक्शन है, मोटर जो लगा हुआ है, वो मोटर जब तक ये इनिशिएट नहीं करेगा तुमको ये चीज सर्च करना है, तब तक आप प्राइमरी मेमोरी को प्रेशर नहीं देंगे। आप प्राइमरी मेमोरी को प्रेशर तभी देते हैं जब आपको कोई असाइनमेंट मिलता है। असाइनमेंट मिलता है उसके हिसाब से आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। उसके बाद आप उस एरिया, आप देखते हैं कभी कि आपको अगर मैथ का कोई क्वेश्चन दिया गया है कि, और ये बता दिया गया कि मैथ के पर्टिकुलर बुक के पेज नंबर इतना में ये क्वेश्चन है, ये सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन दिया गया असाइनमेंट, उस पेज नंबर को ओपन करके आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है। अब ये सारी बातें जो आपको मिली, इसके लिए कंट्रोल सिग्नल आपका जो जनरेट हुआ, मोटर जनरेट हुआ किया, उसके बेसिस पर आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी उस बुक को, आप देखते हैं कि आपको मैथ का बुक कहा गया तो इंग्लिश का बुक का पेज नंबर ओपन आप करते हैं? कभी नहीं। आप मैथ की बुक को सर्च करते हैं और उसी मैथ के बुक का वो पेज नंबर ओपन करते हैं जो पेज नंबर बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्राइमरी मेमोरी वही रिस्पॉन्ड करता है जो उसको सिग्नल जनरेट किया जाता है।
तो बिना कंट्रोल सिग्नल्स के प्राइमरी मेमोरी भी फेचिंग इनिशिएट नहीं करेगा। अब ये कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होगा? अगेन यूजर इंटरवेंशन इज देयर। सपोज इफ यू वांट टू ओपन MS Word, so whether your computer open MS Excel for you? No. If you want to open PowerPoint, then whether your computer open the particular MS Word? No. So whatever you want to open, you just submit the request through the interface. So operating system provide you the interface through which you can interact with the system. आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जिसके थ्रू आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल का टच स्क्रीन आपको क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि टच स्क्रीन को जो डिस्प्ले हो रहा है उसको जब टच करेंगे उस आइकन को, तो वो आइकन जो है आज रिक्वेस्ट आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही वो टच किया, इसका मतलब कि यू आर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट, एंड वंस यू आर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट, देन द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फॉर ओपनिंग ऑफ दैट फाइल। तो वो फाइल आपका रिसोर्स से ओपन होगा। अब वहां से आपका जो है प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट करता है जॉब। प्राइमरी मेमोरी फेच जॉब पूरा करेगा, उसके बाद वो कैश मेमोरी को जाएगा, फिर कैश मेमोरी से CPU कलेक्ट करेगा और कंट्रोल यूनिट फिर उस पर डिसीजन लेगा। क्योंकि CPU कोई बॉडी है नहीं, तो CPU का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल अलग अलग कंपोनेंट करते हैं। तो उसमें एक कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब कि जो सिग्नल जनरेट किया वो असाइनमेंट पूरा होने के बाद इंस्ट्रक्शन उसके पास आ गया है, अब उस पर डिसीजन बनाना है। तो डिकोडिंग का काम वो पूरा करेगा। डिकोडिंग के काम पूरा होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन पार्ट इनिशिएट हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी फेजेस आर रिलेटेड विद द कंट्रोल यूनिट, वेदर इट इज फेचिंग फेज, डिकोडिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज। दैट इज क्लियर टू यू? नाउ लास्ट क्लास हम लोग कंट्रोल यूनिट डिस्कस किए थे, उसके बाद देयर इज ए ALU हम लोग डिस्कस कर लिए थे, नहीं किए थे? हाँ देखिए, ALU आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ALU, ये ALU और FPU दोनों डिस्कस किए थे हमको जहां तक ध्यान में है। तो ALU और FPU हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। अब ये दो सेक्शन है। ALU आपका हो गया अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। हम लोग नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट भी पढ़ लिए थे, तो आई जस्ट रिकॉल दैट वन। तो NFP दैट मींस नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट PDF। नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग देख लिए थे कि मैथमेटिकली, ठीक है ना, योर मैंटिसा इज लेस देन 1 by base and greater than 1, and base में भी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बेस आपका कोई भी नंबर सिस्टम का के हिसाब से हो सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है। हाँ, तो ये बेस या उसको रेडिक्स बोलते हैं किसी भी नंबर सिस्टम का। तो हाँ चलो, बेस या रेडिक्स, एक्चुअली बेस या रेडिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे आप? ये बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, या हेक्साडेसिमल का 16 होता है। वाई? कैरेक्टर है, ठीक, कैरेक्टर है या डिजिट है या सिंबल, ठीक है ना। तो बेस और रेडिक्स, बेस बोले या रेडिक्स बोले, बेस या रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम का क्या है? तो it is the number of character, you can say character or symbol or integer digit। हाँ, डिजिट भी तो हो सकता है। डेसिमल है, बाइनरी है, इसमें तो डिजिट ही होगा। ऑक्टल में भी डिजिट होगा, केवल हेक्साडेसिमल में हेक्स और डेसिमल है, तो डेसिमल डिजिट एंड हेक्स कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर्स इज देयर। तो इट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर और सिंबल और डिजिट अवेलेबल इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, सिंबल या कैरेक्टर अवेलेबल है वो तय करता है कि उस नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा। तो बाइनरी का बेस 2 है क्योंकि इसमें 2 डिजिट 0 और 1 है। ऑक्टल का बेस 8 है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 ये 8 डिजिट है। डेसिमल का बेस 10 है क्योंकि 0 to 9 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं हम।
और हेक्साडेसिमल में हेक्स और डेसिमल, हेक्स मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, तो 10 और 6 16 कैरेक्टर या डिजिट है। तो 0 to 9 डेसिमल डिजिट 10 हो गया और ABCDEF 6 कैरेक्टर है। तो चूंकि ये 16 है संख्या में, इसलिए इसका बेस क्या हो गया 16। ठीक है, तो बेस या रेडिक्स उससे तय होता है। अब यहाँ जो मैंटीसा है, यानी कोई भी मैथमेटिकल जो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को हम MBE फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे, जहां पर MB और E क्या है आपका, M आपका हो गया मैंटीसा, B हो गया बेस और E हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है ना। तो अब आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट जो होगा, उसमें मैंटीसा का जो वैल्यू है हमेशा 1 बाय बेस और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका अगर बेस, उसमें आप जो PDF है उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर बेस 2 है तो 1/2 लेस देन M1, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 0.5 और 1 के बीच में होगा मैंटीसा। अगर आपका बेस 8 है तो उस केस में आपका अगेन 1/8 लेस देन M1, 1/8 क्या हो जाएगा 0. कितना होता है, हाँ 0.125 लेस देन M1, मतलब इसके बीच में आपका होगा। अगर आपका बेस जो है वो 10 है, तो आप यहाँ देख लीजिए 10 है तो B का वैल्यू 10 हो गया, दैट इज 1/10 लेस देन 1, इसका मतलब ये हो गया 0.1 और 1 के बीच में होगा। इसी तरह से 1/16 करेंगे तो 0.03125 समथिंग या 0.0625 ऐसा कुछ होगा, देख लीजिए कैलकुलेशन करके 16 से डिवाइड करके। हाँ 1/16 इज इक्वल टू 0.0625। ठीक, तो अगर 1/16 होगा तो 0.0625 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 0.1 से भी कम। इसमें 0.1 और 1 के बीच में, इसमें 0.125। अगर इसको आप एग्रीगेट कर, मतलब अगर 1 प्लेस तक ले जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, 5 से ये 2 जो है 3 हो जाएगा, राउंड करेंगे तो। और यहाँ चूंकि 3 है, 5 से कम है तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी 0.1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अगर ऑक्टल भी होगा तो ऑक्टल और आपका डेसिमल के लिए मोर और लेस सेम ही रहेगा, 0.1 और 1। बाइनरी के लिए 0.5 और 1 के बीच में होगा। नाउ दिस इज द स्ट्रेटजी व्हाई वी डिस्कस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। कोई बता सकते हैं, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कुछ, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में का जरूरत क्यों पड़ा, डेसिमल के कारण, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर आ सकता है। नहीं, एक्चुअली जो ALU है, ALU सपोर्ट्स ओनली इंटीग्रल ऑपरेशन। ठीक है ना, ALU सपोर्टेड ओनली इंटीग्रल ऑपरेशन। इंटीग्रल ऑपरेशन सपोर्ट करता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के लिए हमको एडिशनल मैथ को प्रोसेसर का जरूरत है, तो वो काम हमारा पूरा FPU करता है। अब क्या है कि जो MBE फॉर्म में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है, वो उसका वेरियस रिप्रेजेंटेशन, एक ही डेटा को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। अब वो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में अगर आपका कोई डेटा, क्योंकि अब नंबर सिस्टम में क्या है, 2 फैक्टर, एक डिजिट और दूसरा नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैथमेटिकली पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है डिजिट और नंबर में। अगर सेट और सबसेट की बात किया जाए तो विच वन इज द सेट एंड विच वन इज द सबसेट, डिजिट इज ए एंड नंबर इज द, यानी कि नंबर, डिजिट्स आर यूज्ड टू मेक अ नंबर, डिजिट्स आर यूज्ड टू मेक नंबर। तो वही तो बोल रहे हैं, digits are used to make a number, यानी कि if you are in the process to make a number for binary number system, then you have only 2 digits, 0 and 1. So any digit, any number is designed by the help of that 0 1 only. If you are making any number in octal number system, then you have 0 to 7 digit, so you can use 0 to 7 digit to design or make any number. So digit is the
individual representation of the particular numeric value in any number system, and number is the collective representation of that number. So in a specific number system, so integral operation is accomplished by the ALU. और चूंकि बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन होगा जिसमें केवल इंटीग्रल नहीं, जो वैल्यू है वो डेसिमल में भी होल्ड करेगा, जैसे लोगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, आपका और भी है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, कैलकुलस में यूज करते हैं, इंटीग्रल जो भी आपका है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन, ये सारा उसमें डेटा आपका डेसिमल में हो सकता है। तो इंटीग्रल ऑपरेशन इसका मतलब है कि एएलयू में आपका जो भी सेक्शन है, लाइक एडर, ठीक है ना, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइड, हाँ, कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल और, क्योंकि लॉजिकल यूनिट भी है तो लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है, लॉजिकल एंड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो दीज आर सम अरिथमेटिकल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ गया। लॉजिकल और, नॉट एंड, दैट इज द लॉजिकल यूनिट, यानी लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये आप पढ़े होंगे, लॉजिकल और नॉट, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर इसको कंपेयर करिए तो करंट फ्लो को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस वे टू अरेंज द करंट फ्लो? पढ़े हैं फिजिक्स भी कुछ पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, दो तरीका है, हाँ, पैरेलल और सीरीज। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में गेट पढ़े होंगे, लॉजिक गेट, बेसिक गेट्स। तो दो तरह से करंट फ्लो करते हैं। एक तो हुआ कि सपोज करिए कि आपका कोई भी, सपोज यहाँ बॉल्ब लगा है और यहाँ पर आपका 3 स्विचेज डाल दिया गया है, S1, S2 और S3। तो ये बल्ब को ऑन होने के लिए क्या तीनों को ऑन करना जरूरी है? एक भी से हो जाएगा? हाँ, लेकिन एक और अरेंजमेंट आप पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी एक बल्ब है, इसमें ये 3 स्विच इस मोड में रखा हुआ है, पैरेलल मोड में। तो अगर इसमें से कोई एक स्विच अगर आपका ऑन हो जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया ये पैरेलल। तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब बता सकते हैं कोई कि ये जो सीरीज अरेंजमेंट है ये लॉजिकल किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट टू लॉजिकल एंड, नॉट और। लॉजिकल एंड में क्या है कि once the input of the particular gate, यानी कि if all the inputs are high then output is high। हाई को 1 से और लो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें S1, S2, 3 ऑन होने का मतलब क्या है कि तीनों स्विच ऑन होने का मतलब है कि इनपुट हाई है। तो एक भी अगर इनपुट इसमें लो होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट टू, यस, लॉजिकल। और जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो इन्वर्टर इज इक्विवेलेंट टू लॉजिकल नॉट, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एएलयू और एफपीयू। नाउ वी डिस्कस द रजिस्टर्स में भी डिस्कस कर लिए थे एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर रजिस्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना? याद नहीं है? अच्छा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हम आपका भी चेक किए थे। हाँ, वही वाला वो वाला एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेसिकली क्या है? होल्ड्स द पार्शियल और इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ALU में जो भी ऑपरेशन होता है उसके पार्शियल, जैसे हम लोग जोड़े 4 + 2
+3 +4 हम लोग एक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो वो एक्यूमुलेटर आपका रजिस्टर क्या करता है, प्रीवियस डेटा को होल्ड करता है ताकि फर्दर रिजल्ट जनरेट कर पाए आप। तो आपका भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रीवियस रिजल्ट होल्ड कर रहा है, इसलिए 4 + 2 के बाद आप जब पूछा जाता है +3 क्या होगा तो आप 9 बता देते हैं। उसके बाद पूछा जाता है +4 क्या होगा तो 13 बता देते हैं। इसका मतलब कि पहला ऑपरेंड कहीं ना कहीं आप स्टोर करके रख रहे होंगे टेम्पोरली, लेकिन जैसे ही हम नया डेटा देते हैं 5 + 3 क्या होगा तो आप उसको ओवरराइट करके 8 बता देते हैं, यानी पिछला रिजल्ट आपका डिलीट हो गया। डिलीट इन द सेंस कि ओवरराइटेड है। तो ओवरराइटेड होने के पहले या तो आप कहीं लिख के रख लेंगे, क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो लिख लेंगे कि अगर पूछा जाए कि प्रीवियस जो आपका कैलकुलेशन था वो क्या था, तो आप बताने के बोलेंगे कि 13 था, अब चेंज होकर 8 हो गया, पहले वाला डेटा हम रख लिए 13 है। ठीक है ना, क्योंकि फिर बाद में पूछा जाए कि जो पहले वाला डेटा था उसमें अभी जो करंट डेटा उसको ऐड करिए। तो आपके पास पहले वाला डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, अब वही स्टोर आप कहीं परमानेंटली करना होता है आपको, या टेम्पोरली आप उस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में रखते हैं। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जितना भी एएलयू में ऑपरेशन होता है सबके अकाउंटेबिलिटी को, रिजल्ट को पार्शियली होल्ड करके रखता है टेम्पोररी वे में, नॉट अ परमानेंट मैनर। बिकॉज जैसे ही एक्सप्रेशन चेंज हुआ, क्वेश्चन चेंज हुआ, वो प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देता है। तो आपको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना होता है, जो आगे हम लोग जब लो लेवल प्रोग्रामिंग देखेंगे यहाँ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो उसमें देखेंगे कि आपका ऑपरेंड बेसिस पर कैसे डेटा हैंडलिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर मोर और लेस सेम है, क्योंकि इट इज ऑल्सो होल्ड्स द पार्शियल और इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन के दौरान ये भी आपका पार्शियल या इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो आप बोलेंगे कि किस तरह के कैलकुलेशन, तो एफपीयू आप बोल सकते हैं। एफपीयू में जो काम हो रहा है उसके लिए एएलयू के लिए तो डेजिग्नेट कर दिया एक्यूमुलेटर, एफपीयू के लिए आप जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस टू रजिस्टर आर सेम। तो इन सम माइक्रो प्रोसेसर योर एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज ऑल्सो कम्स अंडर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो इंटेल 8086 जिसका आईबीएम आर्किटेक्चर जो डिस्कस करेंगे हम लोग, वहां पर आपका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है इट कम्स अंडर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो वहां पर हम लोग याद करते हैं ऐसे ABCD एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर एंड डेटा रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर भी रिजल्ट पार्शियल या इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड कर रहा है, और आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी उसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या कर रहा है, स्पेसिफिक फॉर एएलयू पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो एएलयू में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके रिजल्ट को स्टोर कर रहा है, और जनरल पर्पस रजिस्टर स्टोर एनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। So that's why sometime in some microprocessor like 8086 which we have to discuss, accumulator register exists inside the particular general purpose register. Now after this general purpose register, हमारे पास जो तीसरा, that is the special, इसको आप पढ़े हैं, पढ़ के आए हैं, पढ़ के आने के लिए बोले थे, इसीलिए हम शेयर कर दिए थे सारे रजिस्टर्स को जो डिस्कस करना है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में सबसे पहले है पीसीआर, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो वहां पर हर प्रोसेस का एक पीसीबी जनरेट होता है। पीसीबी जनरेट होता है तो वो पीसीबी आपका उस प्रोसेस का स्टेट को मेंटेन करता है, यानी कि किसी भी प्रोसेस का पीसीबी अगर आप देखते हैं तो उस प्रोसेस का करंट स्टेट पता चलता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और इन टर्मिनेशन स्टेट, यानी कि वेदर द पीसीबी इज डिस्ट्रॉयड और डीएलोकेटेड, तो डीएक्टिवेटेड हो गया या अभी उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपका प्रोसेस है, ये सारे स्टेट को। उसी तरह से उसका पीसीआर भी होता है हर प्रोसेस। तो पीसीआर क्या मेंटेन करता है, पीसीआर मेंटेन्स द एड्रेस, यानी बेसिकली इसका मेन फंक्शनिंग क्या है, इट होल्ड्स द एड्रेस
of the address of the next instruction to be executed in the computer. It supports pipelining of the job. जॉब को पाइपलाइनिंग करने के लिए ये सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है. योर जॉब इज पाइपलाइन once the CPU get the particular instruction one after another. After completion of one instruction, another instruction is allocated in a frequent manner to the CPU. That means CPU जो है कभी वर्कलेस नहीं होगा, CPU हमेशा बिजी रहेगा, क्योंकि CPU जब बिजी रहेगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन CPU का होगा. जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन CPU का होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल पूरा होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा गोल क्या है? पहला गोल तो है कि CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दूसरा कि थ्रूपुट, मैक्सिमाइज द थ्रूपुट, यानी आउटकम, ज्यादा से ज्यादा आउटकम जनरेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है. थ्रूपुट को बढ़ाना. थ्रूपुट तब बढ़ेगा जब आप CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे. CPU अगर वर्कलेस हो जाएगा तो थ्रूपुट भी आपका अफेक्टेड हो जाएगा, आउटकम कम जनरेट होगा. अगर CPU आइडल स्टेट में चला गया, वो जॉबलेस हो गया, तो जॉबलेस नहीं हो, CPU को एक जॉब कर रहा है तब तक इमीडिएटली दूसरा जॉब पाइपलाइन होना चाहिए. तो PCR इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीजन. जैसे अगर हम एक PCR जोन बना दें, ठीक है ना, तो तुम खड़े हो जाओ, थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर निकलिए, यहाँ यहाँ जाओ, यहाँ जाओ. जैसे इसको यहाँ से, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, इधर से एग्जिट है, ये आपका PCR है. PCR ये जोन बना. PCR में अभी क्या है, इसके पहले एक प्रोसेस आगे, प्रोसेस एग्जीक्यूशन फेज में है, उसको आगे एक तुम आ जाओ, हाँ आ जाओ, देखिए सिस्टम समझ में आएगा आपको. आप वहां जाइए, वो एग्जिट पॉइंट है, यानी कि ये प्रोसेस, अब तुम्हारा क्या नाम है? आयुष इज इन एग्जीक्यूशन फेज एंड योर नेम राजीव इज अंडर PCR जोन में है. तो अब आयुष जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो CPU जॉबलेस हो जाएगा. तो CPU जॉबलेस नहीं हो, इसलिए हम पहले से इसको यहाँ पर एलोकेट किए हुए. तो एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी सब इंस्ट्रक्शंस होता है. जब PCB का बात करते हैं तो वहां PCR क्या मेंटेन करता है? इंस्ट्रक्शन के अंदर जो सब इंस्ट्रक्शंस है, ताकि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जनरेट होगा. तो एक इंस्ट्रक्शन, जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसका दूसरा लाइन उसको तुरंत मिलना चाहिए, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से. तो ये जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, अब तुम निकल गए, जाके बैठ जाओ. अब ये आगे जैसे ही वो हटा, ये आगे गया, तुम खड़ा हो जाओ, और जब वहां से तुम रेडी टू इधर मूव करने के लिए हो जाओ. तुम इंतजार में, तुम बैठ जाओ, आप आ जाइए. ये जैसे तुम आगे बढ़ो, चलो तुम आ जाओ, ये आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा. ये देखिए, ये जैसे ही क्या नाम है, राजीव जैसे ही एग्जीक्यूशन एरिया में गया, ये आपका PCR में आ गया. यानी PCR कभी भी, जाओ बैठ जाओ, PCR कभी भी आपका जो है वो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम तो एग्जीक्यूटर हो गए, तो अभी PCR जो इसके बाद जाएगा वो. तो PCR ऑलवेज कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. व्हाई? जस्ट टू पाइपलाइन द जॉब. जॉब को पाइपलाइन करने के लिए. तो आयुष जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया तो इमीडिएटली राजीव जो है एलोकेट किया उसको. किसको एलोकेट किया? एग्जीक्यूशन एरिया को, यानी CPU के अंडर में वो कंसर्न में चला गया. और जैसे ही राजीव आगे बढ़ा, तुम्हारा क्या नाम था? रविशंकर जो है उस PCR जोन में आ गया. यानी PCR क्या कर रहा है? ये चीज आपको यहाँ से, ये चीज, ये लाइन उसमें लिखा हुआ है, जब आप PDF पढ़ेंगे तो PDF में लिखा हुआ है, देखिए, the program counter keeps track of the address of the instruction which is to be executed next. So it holds the address of the memory location which contains the next instruction to be fetched from the memory. Next कौन सा instruction fetched होगा? Its content is automatically incremented. जैसे आयुष कंप्लीट किया, राजू आ गया, राजू मूव किया तो रविशंकर आ गया. That's why ये लाइन लिखा हुआ है कि its content is automatically incremented after an instruction has been fetched, assuming that instructions are normally executed sequentially.
दैट्स व्हाई। अब नाउ आई थिंक दैट पीसीआर इज क्लियर टू यू। पीसीआर का क्या काम है? पीसीआर ऑलवेज keeps the track or address of the next instruction to be executed inside the computer. कंप्यूटर में नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को पीसीआर पहले से होल्ड करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जॉब पाइपलाइन हो जाएगा। आपका जो जॉब है, सीपीयू को एक जॉब पूरा कर रहा है तब तक दूसरा जॉब उसका ऑलरेडी पाइपलाइन है। जैसे ही वो पूरा किया, वो जॉब पीसीआर से चला गया और पीसीआर फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड हो गया, दूसरा जॉब पीसीआर में आ गया। हाँ, कहाँ से आ रहा है ये सब? गुड क्वेश्चन, एकदम। कहाँ से आ रहा है आप ही बताइए, ये जॉब कहाँ से आ रहा है? ये जॉब आ रहा है, अब देख आगे जब आप, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ज्यादा क्लास नहीं हुआ होगा, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ से आ रहा है। ये जॉब आ रहा है आपका यूजर से भी आ रहा है और सिस्टम से भी आ रहा है। हाँ, नहीं भी होगा तब भी सिस्टम प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस आप जब, हाँ आप बता रहे हैं, आप सिस्टम प्रोसेस और यूजर प्रोसेस, बेसिकली ओवरऑल सिस्टम में दो व्यू होता है, यूजर व्यू और सिस्टम व्यू। तो यूजर प्रोसेस, सम देयर इज अ यूजर प्रोसेस, सम प्रोसेस इज अ सिस्टम प्रोसेस। अब जब आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक हायरार्की होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वहां पर एक हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, और एक होता है लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको क्या लगता है कौन सा प्रोसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा जाता होगा? सिस्टम प्रोसेस। जो भी सिस्टम प्रोसेस है, जैसे अगर आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हो तो क्या एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इफ द सिस्टम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, नो अदर प्रोसेस। अब सिस्टम प्रोसेस के बाद देयर इज सम इंटरेक्टिव प्रोसेस जो यूजर जनरेट करता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ यूजर, क्योंकि यूजर जो इंटरेक्ट करके बताता है, सबमिट करता है रिक्वेस्ट उसके अकॉर्डिंगली। एंड देयर इज सम बैकग्राउंड प्रोसेस ऑल्सो। आप ये सारा चीज देखने के लिए आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। आप टास्क मैनेजर में देखेंगे कि आपने तो कोई एक आध एप्लीकेशन यूज किया, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस दिख रहा है, बहुत सारा प्रोसेस रन कर रहा है। और जब एंटीवायरस नहीं होगा, वायरस अगर आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, तो देखिएगा कि बहुत सारा रेप्लिकेटेड प्रोग्राम आपको दिखेगा, प्रोसेस वहां। रेप्लिकेटेड का मतलब कि क्लोनिंग, एक ही प्रोसेस बार बार दिखेगा। आप बोलेंगे हमने एक बार खोला, ये 3-4 बार दिख रहा है, तो सेल्फ रेप्लिका जनरेट होना शुरू हो गया। तो वहां पर क्या है कि वो आपके सिस्टम के एफिशिएंसी को स्लो कर देगा। ठीक है ना, धीरे धीरे, क्योंकि आप एक कमांड जनरेट करेंगे वो 100 कमांड जनरेट होने लगेगा। That's why the computer, at the same time, whenever you are accessing the computer, then you have to retrieve, you have to delete. ठीक है ना, whenever you are accessing internet, so you have to delete certain temporary file, because whenever you are accessing that, the temporary file automatically adhere with your system cookies. So you have to remove that cookies, you have to remove that temporary files, you have to remove the recent, because जब आप recently जब सिस्टम खोलते हैं तो बहुत सारा फाइल आप ओपन करते हैं, फोल्डर हेड मूवमेंट होता है आपका, तो उससे क्या है वो सब मेमोरी जो है उसको ऑक्युपाई करके रखता है। तो वो भी, क्योंकि रैम आपका जो है लिमिटेड है, अगर एवरीथिंग इज लोकेटेड ऑन रैम, जब तक सेशन चल रहा है तब तक तो होल्ड करेगा ही, सेशन ऑफ होगा तब वो डिलीट होगा। तो वो क्या है, धीरे धीरे आपका सिस्टम को स्लो करेगा। तो यू जस्ट 3-4 चीज आपको करना चाहिए, प्रीफेच, टेम्प, ठीक है ना, रिसेंट, ये सारे फाइल को रिसाइकिल बिन से भी हटा दीजिए। रिसाइकिल बिन में भी ज्यादा दिन तक नहीं रखे, वो तो अपने हटाएगा, बट जस्ट यूज शिफ्ट del, because that is not necessary file, that is unnecessary file for your computer, you just delete it permanently। ठीक है ना, I just show you that कि अभी हम लोग जो यूज एक्सेस यूज किए उसमें कितना तरह का टेम्पोररी फाइल क्रिएट हो जाता है। सम फाइल्स में बी डिलीटेड और मे नॉट बी डिलीटेड, कुछ नहीं भी डिलीट होगा, बट जो डिलीट हो रहा है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, एंड देयर इज सम बैच प्रोसेस। ठीक है ना, ये आप ये सारा चीज आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, तो वहां पर प्रोसेस का ये डिफरेंट हायरार्की देखेंगे। जैसे मेमोरी का हायरार्की देखे, उसी तरह से सिस्टम का भी हायरार्की है। ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम लोग जाते हैं।
ठीक है ना। तो आप जो यूजर जो प्रोसेस इंटरेक्टिव प्रोसेस जो जनरेट होता है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस मिडिल स्टेप प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस तभी जनरेट होगा जब सिस्टम प्रोसेस इनिशिएट हो गया होगा। इसलिए जब सबसे पहले आपका जब सिस्टम ऑन करते हैं तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन टू द रैम? पहला प्रोग्राम क्या होता है जो रैम पर लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट लोडर प्रोग्राम। वो जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा बूट लोडर प्रोग्राम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। जैसे विंडोज का है, विंडोज में यूज होता है, लिनक्स में यूज होता है। तो लिनक्स में लीलो, दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। लीलो इज द बूट लोडर। ग्रब, GRUB, ग्रब इज द पर्टिकुलर बूट लोडर। लेकिन फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन रैम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज बूट लोडर ऑल्सो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सबसे पहले क्यों होता है, आपको बता सकते हैं? रैम में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों माउंट होता है, पहले एलोकेट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं होगा तो हम लोग को एप्लीकेशन रन नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि वो सुपरवाइजरी प्रोग्राम है, रिसोर्स एलोकेटर है। तो जो भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में एलोकेट होगा उसको प्रोसेस को सही ढंग से मैनेज और मैनिपुलेट कराने के लिए वहां पर एक मॉनिटर होना जरूरी है। तो योर ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस, and each and every process is under concern of that operating system. So first loaded program is operating system, and operating system is the system software, you already know. So system process is initiated, that is the hierarchy. Once the system process is initiated, then after interactive process is going on, and whenever in any interactive process or system process is running in the system, then some background process is also going on, which is not अंडर व्यू ऑफ द पर्टिकुलर यूजर, यूजर के व्यू में नहीं रहता है, बैकग्राउंड प्रोसेस भी होता है। जैसे आप एटीएम में जब यूज, जिसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन, जब आप आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि देयर इज सर्टेन फीचर्स, सर्टेन डिटेल्स व्हिच इज हिडन बाय द यूजर। आपको जब एटीएम से पैसा निकालते हैं आपको पता है कि आपका ये पैसा निकालने के बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस चला। आप कार्ड इंसर्ट किए तो कार्ड इंसर्ट करने के बाद पिन मांगा गया, पिन से क्या क्या ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन होने के दौरान आपका कौन सा डेटा, कौन सा अकाउंट नंबर कैसे चेक किया, कौन सा टेबल जनरेट हुआ, किस टेबल से आपका कंपेयर करके अकाउंटेबिलिटी ऑथराइजेशन चेक हुआ, ये आपको तो दिखा नहीं। आपको क्या दिखा, आपसे एक स्टेप जब आगे बढ़ा तो वहां दिखा कि इंटर द ऑप्शन, मतलब सेलेक्ट एनी ऑप्शन, तो विड्रॉ को आपने सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला कि मल्टीपल ऑफ 500 या 10 में आप डेटा डालिए, वो डाले, फिर आपका पैसा उसके अकॉर्डिंगली रिट्रीव हो गया, आपने विड्रॉ कर लिया। ये सारे प्रोसेस के पीछे में कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो दैट प्रोसेस, दैट कंट्रोल, दैट डेटा इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द यूजर, क्योंकि यूजर को उसको नहीं दिखाना है, हाइड करना है। तो दैट इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। क्योंकि कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन इसलिए आप जो कंट्रोल यूज कर रहे हैं उसका फंक्शंस आपको नहीं पता है, आप केवल उस बटन को प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बटन को प्रेस करने से वहां जो लिखा हुआ है मैसेज वो काम हो जाएगा। विड्रॉ लिखा हुआ तो विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। डिपॉजिट लिखा है तो डिपॉजिट हो जाएगा, मिनी स्टेटमेंट लिखा है तो मिनी स्टेटमेंट हो जाएगा। तो whenever you are also designing interface, you are designing interface and create some background process under that button. आप बटन के पीछे कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस बनाएंगे, जब भी कोई वो बटन को प्रेस करेगा तो बैकग्राउंड प्रोसेस चलेगा और बैकग्राउंड प्रोसेस के बाद वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जो बैकग्राउंड प्रोसेस आप किसी को दिखाएंगे नहीं, आप केवल EXE शेयर करेंगे। किसी भी यूजर को आप अगर सोर्स कोड देंगे, सोर्स कोड को क्या मतलब है यूजर को, अब कोई यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा गया, कोई 5000 लाइन में बनाया, कोई 500 लाइन में बना लिया, कोई 85 लाइन में बना लिया, वो तो डिपेंड करता है किसने कौन सा टूल्स यूज किया। अब मान लेते हैं कि एरे का कॉन्सेप्ट आपके पास है, लेकिन आपने एरे यूज नहीं किया, 50 डेटा आपको हैंडल करना, 50 वेरिएबल ले लिया आपने, प्रोग्राम तो वो भी रन करेगा। प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि उसका आउटकम नहीं है, वो भी आउटकम जनरेट करेगा। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 वैल्यू के बीच में कंपेयर करके लार्जेस्ट निकालना, 3 वैल्यू के बीच में लार्जेस्ट निकालना, 10 वैल्यू के बीच में, अब 1 लाख वैल्यू के बीच में लार्जेस्ट निकालना है। तो अगर हम यही प्रोसेस 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल लेके करेंगे तो 1 लाख के लिए सोच लीजिए क्या हो जाएगा। 1 लाख वैल्यू को यूज करने के लिए हमको कितना नंबर ऑफ स्टेप्स कंपैरिजन का लिखना पड़ेगा, और 1 लाख वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा जिसको आपको कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको हम एरे यूज कर दें तो एरे से क्या, एक ही नाम से हम 1 लाख डेटा, 5000 डेटा, 10,000 डेटा को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे।
और जो कंपैरिजन का जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो 2 लाइन के प्रोग्राम में हो जाएगा। जो हम 1 लाख वेरिएबल ले रहे हैं और 1 लाख बार हम कंपेयर कर रहे हैं, 1 लाख लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया ना। तो व्हाई द टूल्स आर डिस्कस, जस्ट टूल्स आर डिस्कस फॉर जस्ट एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव टू टेक डिसीजन कि व्हेन यू हैव टू यूज विच टाइप्स ऑफ, कब कब आपको क्या क्या टूल्स यूज करना है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये सारा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाएगा कि सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस नॉर्मली जो रियल लाइफ में वो तो आप जानते ही हैं, और बैच प्रोसेस जैसे आप प्रिंटिंग जॉब देते हैं तो प्रिंटर में अगर 50 लाइन प्रिंट करना है तो वो सारे जो पेजेस जो प्रिंट करना वो एक ही फाइल का होगा, यानी आपका प्रिंटर एक बार 50 पेज निकालेगा नहीं निकाल पाएगा। तो बैच प्रोसेसिंग क्या हो गया, बैच प्रोसेसिंग सबसे मिडिल में है। क्यों? क्योंकि हमेशा आप प्रिंटिंग नहीं करते हैं, हमेशा ऐसा कोई नहीं है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब आप करते हैं। तो जो जॉब आपका सिचुएशन और टाइम रिक्वायरमेंट और के बेसिस पर होता है उसका प्रायोरिटी सबसे लो होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आप एक्सेस और जो है यूज नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज द हायरार्की, जस्ट लाइक अ मेमोरी हायरार्की। जैसे मेमोरी का हायरार्की है, सीपीयू से जैसे जैसे दूरी बढ़ा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया, स्पीड घट गया, और जैसे जैसे दूरी घटा स्पीड बढ़ गया, स्टोरेज कैपेसिटी घट गया। उसी तरह से यहाँ प्रोसेस भी है, सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस। ये जब आप पढ़ेंगे शेड्यूलिंग, तो ये मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग में इसको पढ़ेंगे, MLQ, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में ये सारे प्रोसेस को बताया जाएगा, उसमें किस तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज होता है, राउंड रोबिन कहाँ यूज होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहाँ होगा, ठीक है ना, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहाँ होगा, ये सारा चीज आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इन अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो PCR इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार जो PDF दिया गया उसको पढ़ के आइए, और पढ़ने के साथ साथ लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए उसको। क्लास के दौरान अंडरलाइन करके रखिएगा जो भी जहां डाउट होगा, जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें जो लिखा गया है वो सारा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो वो चीज आपको अंडरस्टूड समझ में आ जाएगा अच्छा से। नहीं तो बस वही कथा ऐसा हो जाएगा कि कथा सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी में थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने के लिए थोड़ा सा आपको भी इंटरेक्टिव होना होगा। तो जो पोस्ट किए हैं अगर सबके पास है तो हम फिर से आज पोस्ट कर देंगे उसको, कंटेंट्स को अप टू रजिस्टर्स जो है कंटेंट। तो बाकी का जो रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, ये सारे स्पेशल पर्पस हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यू जस्ट गो थ्रू दैट कंटेंट्स अगेन, आई सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, and in next class we just discuss, because I do not want to discuss the particular content before study, ठीक है ना। तो आप एक बार पढ़ के जरूर आइए, पढ़ने के बाद समझने में ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए पहले का जो भी कंटेंट हम लोग डिस्कस किए उसको एक बार रिव्यू कर दिए। इसमें भी वो कंटेंट में एग्जांपल दिया हुआ है पोस्ट में, जो आपका PDF है उसमें भी एग्जांपल में भी कहीं दिक्कत है, डाउट है, उसको भी नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्टर्स you just raise that doubt and clear your each and every doubt. Don't keep the doubt with yourself, because you are here to clearance of the doubt, because everything is available everywhere. We are sitting here just to clearance of the doubt and sharing the information, ठीक है ना, which is fruitful for you. So only sitting in classroom and giving your attendance is not a purpose to of this classroom. तो ये चीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे से ये पहला था, आज नहीं, कोई समय अभाव, चूंकि फेस्टिवल था इसलिए नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आगे से जो भी पोस्ट किया जाए, जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, जब ऑफलाइन चलेगा तब तो कोई इशू नहीं है, क्लास में जो डिस्कस होगा वो चीज चलेगा। अभी जब तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, बहुत जल्दी ऑफलाइन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज आप कर लीजिए, जो कंटेंट है उसको एक बार पढ़ के आया कीजिए। ओके।